हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, महाराष्ट्र में सत्ता का खेल और सियासत उलझती ही जा रही है और इसमें सबसे ज्यादा बीजेपी फंसती हुई दिख रही है। असल में बीजेपी पर दो तरफा मार पड़ रही है। एक तरफ एकनाथ शिंदे अपने गांव जाकर बैठ गए हैं। बताया जा रहा है कि वो बीमार हैं और डॉक्टरों की टीम उनके इलाज के लिए पहुंची है, लेकिन कार्यवाहक मुख्यमंत्री का इलाज मुंबई में ना होकर उनके गांव के घर में हो रहा है। ये अजीब सी बात है। खैर, तो एक तरफ शिंदे से बीजेपी का संपर्क टूटा हुआ है और दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी की तरफ से चुनाव में धांधली के आरोप तेज होते जा रहे हैं। आरोप भले ही चुनाव आयोग पर लग रहे हैं, लेकिन इसमें असली नुकसान बीजेपी का ही हो रहा है, क्योंकि उस पर बेईमानी से चुनाव जीतने का ठप्पा लग रहा है। इधर एक बड़ी जीत कांग्रेस को भी मिली है, लेकिन इस जीत में जनता का प्यार और मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात कि वायनाड के उपचुनाव में प्रियंका गांधी ने 4 लाख से ज्यादा के अंतर से बड़ी जीत हासिल की और आज उसका शुक्रिया अदा करने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका दोनों वायनाड पहुंचे। अपनी सभा में क्या कुछ कहा है प्रियंका गांधी ने, आइए जरा एक छोटी सी वानगी उसकी सुन लेते हैं। सुनिए। Some days back, when I was here for the election campaign and I came here and met all of you, I said that I'm going to work hard to try to resolve all your problems and to fight for you. കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഇലക്ഷൻ പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. These 2 days, today and tomorrow, I am going to all the assemblies just to say thank you. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്നും നാളെയും ഞാൻ എല്ലാ അസംബ്ലി നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും വെറുതെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നന്ദി പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. After this, my real work is going to start. ഇതിനു ശേഷമാണ് ഇവിടെ എൻ്റെ യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനു ശേഷമാണ്. And I want to tell each one of you who is standing here, each one of you has waited for me on the streets, outside your houses, with flowers, with hugs, kisses, to give me your love. I want to tell you that I am going to work hard for each and every one of you. ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും എനിക്ക് വേണ്ടി വഴിയരികിലും. तो प्रियंका गांधी को सुन रहे थे। वहीं राहुल गांधी ने आज फिर प्रियंका गांधी के साथ साथ खुद को वायनाड का अनाधिकारिक सांसद बताया है और इस मौके पर प्रियंका गांधी को एक नेक सलाह भी दी है। आइए जरा राहुल गांधी को भी सुन लेते हैं इस मौके पर क्या प्रियंका गांधी को नेक सलाह दे रहे हैं। सुनिए। I am Priyanka's elder brother. ഞാൻ പ്രിയങ്കയുടെ മൂത്ത സഹോദരനാണ്. And I am talking to my family. ഞാനിവിടെ എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So I will take the liberty of giving her some advice in front of you. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എൻ്റെ സഹോദരിക്ക് കുറച്ച് ഉപദേശം കൊടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എടുക്കുകയാണ്. I know she knows this already, but I'll say it anyway. എനിക്കറിയാം എൻ്റെ സഹോദരിക്ക് ഇത് ഇപ്പൊ തന്നെ അറിയാം, പക്ഷെ ഞാൻ എന്തായാലും അത് പറയാൻ പോവുകയാണ്. That in whatever decision you take, the guide should always be the people of Wayanad. എന്ത് തീരുമാനം നിങ്ങൾ എടുത്താലും എൻ്റെ സഹോദരിയോട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, അതിൽ നിങ്ങളുടെ മാർഗദർശി വഴികാട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങളായിരിക്കണം. There are many people who claim to have knowledge, bureaucrats, big officers, but true knowledge always resides with the people. ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അറിവുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്, ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട്, ബ്യൂറോക്രാറ്റുകളുണ്ട്. പക്ഷേ യഥാർത്ഥ അറിവെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഉള്ളത് ജനങ്ങളിലാണ്. ജനങ്ങൾക്കാണ് യഥാർത്ഥ അറിവുള്ളത്. You want to understand about rice, go to a farmer. നിങ്ങൾക്ക് നെല്ലിനെ പറ്റി അറിയണം, അരിയെ പറ്റി അറിയണം, നിങ്ങൾ ആരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകണം? ഒരു കർഷകന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം. You want to understand. तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जोड़ी वायनाड से लेकर संसद तक अब धूम मचाती नजर आएगी और इसमें सबसे ज्यादा हैरान परेशान बीजेपी ही होगी। कहां तो नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म में बीजेपी को और मजबूत करना चाह रहे थे, लेकिन अभी बीजेपी की मजबूती का आलम यह है कि महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बनने और महायुति को पूर्ण बहुमत यानी क्लियर मेजॉरिटी मिलने के बाद, या कहें तो मिलने के बावजूद 7 दिनों में
सीएम का नाम तय नहीं हो पाया है। मोदी के रहते बीजेपी इतनी कमजोर क्यों दिख रही है, ये सवाल अब उठने लगे हैं। और अगर कहीं संघ यानी आरएसएस ने इस सवाल को गंभीरता से ले लिया तब तो मोदी की मुसीबत और बढ़ जाएगी। वैसे ही अडानी मामले में इस समय सरकार फंस गई है। अमेरिकी अदालत के फैसले के बाद नरेंद्र मोदी सरकार अडानी पर विपक्ष के सवालों से बच ही रही थी। अब उसके जवाब सरकार की तरफ से जवाब जो है वो आ गया है, यानी सरकार ने अब जवाब दिया है कि ये निजी व्यक्तियों और निजी संस्थाओं और अमेरिकी न्याय विभाग से जुड़ा कानूनी मामला है। ये निजी व्यक्तियों, निजी संस्थानों और अमेरिकी न्याय विभाग से जुड़ा कानूनी मामला है। सरकार की अगर ये निजी व्यक्ति, निजी संस्था वाली दलील मान भी लें दोस्तों, तो अब सरकार से पूछा जाना चाहिए कि क्या अब वो अडानी के साथ किए गए सारे व्यापारिक समझौते रद्द करेगी या कम से कम उनकी समीक्षा करेगी। जाहिर है मोदी सरकार की दलील बेहद लचर है, इसमें कोई दम नहीं है। और इसी तरह टालने वाला रवैया चुनाव आयोग का भी रहा है, आप लोगों ने देखा है। कांग्रेस के शिकायती पत्र पर चुनाव आयोग ने 3 दिसंबर को मिलने का वक्त दिया है। कांग्रेस ने कल ही आप लोगों के सामने हमने रखा था कि 3 कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने एक शिकायती पत्र लिखा है और 4-5 पन्ने का पत्र, और उस पत्र में जो चुनाव हुए हैं, चुनाव आयोग के जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के आधार पर एक शिकायती पत्र, और उसमें जो बातें हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं कि आखिर कैसे 1 घंटे में 76 लाख वोटर्स ने वोट दे दिए, कहां 58% वोट का प्रतिशत 58 था, 58.22%, और वो 1 घंटे में कैसे बढ़कर 66 के लगभग 65 से ऊपर चला गया, ये समझ से परे है। इसके अलावा कैसे 47 लाख वोटर्स बढ़ गए। तो जो चुनाव आयोग के आंकड़े हैं, उन्हीं आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी, और उस शिकायती पत्र पर आज चुनाव आयोग ने 3 दिसंबर को कांग्रेस के इन नेताओं को मिलने के लिए, कांग्रेस के डेलीगेशन को मिलने का वक्त दिया है। इस मुलाकात का नतीजा क्या निकलेगा ये देखना होगा। और इस बीच एनसीपी नेता जितेंद्र अहवाड ने चुनाव आयोग पर नए आरोप लगाए हैं। आइए जरा जितेंद्र अहवाड को सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। सर, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सारा टीका टिप्पणी नहीं, अभी जो मालूमात हमको मिली है कि हम फिर से जो कहते हैं कि हमको फिर से गिनती चाहिए, वो जो रिकाउंटिंग चाहिए, तो रिकाउंटिंग उसी मशीन का होना चाहिए जो मशीन वो टेबल पे थी उसके डाटा सहित। अब ऐसा बोला जा रहा है कि वो डाटा तो हमने वाइप आउट कर दिया है, हम नया डाटा दिखाएंगे और काउंटिंग करके दिखाएंगे, तो उसमें कोई आने वाला ही, कोई गलती नहीं दिखने वाली है। तो क्या मजाक है क्या? जो डाटा हमारे जिस डाटा के ऊपर हमें शक है वो डाटा आपने वाइप आउट कर दिया, तो हम क्या अंधे हैं क्या? ये सब चोरी छुपाने का काम ईसीआई कर रही है, और खास करके लोकसभा हारने के बाद जिस तरीके से वोट बढ़ाए गए, 5 साल में 5 लाख बढ़ाए गए, और 4-5 महीने में 46 लाख सिर्फ महाराष्ट्र में। ऐसा हुआ है क्या कभी? 40 लाख लोग लाइन लगा के अर्जी भर के गए और उनका नाम आ गया। अरे इधर 2 साल लगते हैं नाम लाने के लिए, कितने बार तो 4 बार फॉर्म भरना पड़ता है। अपने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की भी बेटी होती। तो सुन रहे थे आप जितेंद्र अहवाड को, और जितेंद्र अहवाड की मुलाकात कल एकनाथ शिंदे से भी हुई थी जब सतारा जा रहे थे एकनाथ शिंदे, और उसके बाद से सियासी गलियारों में चर्चा गर्म है कि कहीं शायद एनसीपी शरद पवार गुट और शिवसेना शिंदे गुट और पुराना शिवसेना गुट यानी उद्धव ठाकरे गुट, ये सब एकजुट होने जा रहा है। क्या महाराष्ट्र की सियासत में कोई बड़ी हलचल होने जा रही है? इस पर भी हम बात करेंगे। वहीं शिवसेना नेता आनंद दुबे ने भी बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। आइए जरा आनंद दुबे को सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो बीजेपी पर सवाल उठाते हुए। 20 तारीख को चुनाव हुए थे, 23 तारीख को नतीजे आए थे, आज हम 30 तारीख को बात कर रहे हैं। करीब 7 दिन बीत गए। एक बचपन से कहावत सुनी थी कि बीर भर की खिचड़ी हुआ करती थी जो कभी पकती नहीं थी।
जब उस खिचड़ी के बारे में पूछा जाता था तो यही होता था कि खिचड़ी भी पक रही है। ये कौन सी खिचड़ी पक रही है जिससे महाराष्ट्र के 13 करोड़ जनता को नुकसान हो रहा है? आज राज्य में कोई सुशासन नाम की चीज नहीं है, कोई सरकार नहीं है, पूर्ण बहुमत मिला है आपको। क्या करना चाहते हैं आप? किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? मुख्यमंत्री महान नहीं होता, महान जनता होती है। आपको लगता है कि आपके पास मुख्यमंत्री बनाने के योग्य विधायक चुनकर नहीं आए हैं तो आप बताइए, लेकिन अगर योग्य विधायक चुनकर आए हैं, 132 अकेले बीजेपी के पास हैं, 41 अजीत दादा के पास हैं, 57 एकनाथ शिंदे के पास, फिर भी क्या रस्साकसी है? क्यों मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं हो रहा? क्यों राज्य में पूर्ण शासन काम नहीं कर रहा? लोगों की सुख सुविधाओं का ख्याल कब रखा जाएगा? आज 7 दिन हो गए, अगर एक पूर्ण बहुमत की सरकार के पास मुख्यमंत्री तो छोड़िए, किस दिन कौन बनेगा ये अभी तक निर्णय नहीं है। और हम विपक्ष में होकर इनसे सवाल पूछे तो ये हम पर ही बरसे, तो ये तो अच्छी राजनीति नहीं है। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या इनकी प्लानिंग चल रही है, क्या इनकी योजना चल रही है, क्या करना चाहते हैं। अरे राजस्थान में आपने मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया था, मध्य प्रदेश में आपने डिक्लेयर कर दिया था, छत्तीसगढ़ में कर दिया था, उड़ीसा में कर दिया था। केवल महाराष्ट्र के साथ ही सौतेला व्यवहार क्यों? क्या चाहते हैं आप कि जीवन भर मुख्यमंत्री न रहे महाराष्ट्र में, मनमानी चले, केंद्र शासन करना चाहते हैं, केंद्र शासित करना चाहते हैं हमारे महाराष्ट्र को? क्या करना चाहते हैं? खुलकर बताइए। जनता पूछ रही है, पत्रकार पूछ रहे हैं, साहित्यकार पूछ रहे हैं। तो एक तरफ महाराष्ट्र में आप जान रहे हैं कि मुख्यमंत्री को लेकर पेंच अभी भी फंसा हुआ है। बीजेपी सूत्रों का कहना है, बीजेपी के नेताओं का कहना है कि 5 तारीख को मुख्यमंत्री शपथ ले लेंगे, लेकिन उससे पहले आज जबकि 30 नवंबर है और ऑलरेडी आप जानते हैं कि 23 नवंबर को रिजल्ट आ गए, 26 नवंबर से राज्य में विधानसभा भंग हो चुकी है और उसके बाद वहां राष्ट्रपति शासन लग सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही थी। लेकिन उसके बाद अब जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल दूसरी तरफ हैं। एकनाथ शिंदे अपने गांव जा चुके हैं, वहां वो बीमार हैं, बुखार है उनको, डॉक्टर की टीम उनकी देखभाल कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ यहां महायुति की बैठकें जो हैं वो रद्द पे रद्द हो रही हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या अंदर खाने महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक है? और महाराष्ट्र का जब जिक्र आता है तो फिर क्या चुनाव आयोग के अंदर खाने सब कुछ ठीक है? चुनाव आयोग में जो चिट्ठी दी गई कांग्रेस की तरफ से और जो शिकायत की गई कि आखिर इतने वोटर्स कैसे बढ़ गए, अभी आपने जितेंद्र आहूजा जी का भी बयान आपने सुन लिया, और उन बयानों से और इन चिट्ठियों से यह साफ समझ में आता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है आखिर? आइए आज पता करने की कोशिश करते हैं। हमारे तमाम साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं और आगे